हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नाउ बिफोर आई बिगिन दिस चैप्टर, वन थिंग, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लॉन्ग चैप्टर। ये समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, बिट चैलेंजिंग, बट नॉट इम्पॉसिबल. So I am going to make many videos on this chapter. I am going to break few topics और एक टॉप और छोटे तो नहीं होंगे बिकॉज डिटेल में समझाने के लिए एक वीडियो लंबा हो ही जाएगा थोड़ा सा. सो आई वुड रिक्वेस्ट टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो इस वाले चैप्टर और इसके बाद में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बार बार यूज़ होने वाला है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो डाला हुआ है. प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ दोज टर्मिनोलॉजीज. Secondly, whenever you are watching this video, please have some patience and watch the video in full, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. मैं थोड़ा डिटेल्स में समझाऊंगी. एक बार अगर समझ जाओ, ब्लूप्रिंट अगर दिमाग में बैठ जाए, तो एवरीथिंग विल बिकम वेरी इजियर फॉर यू. ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो यहाँ पे टू कीवर्ड्स, वन इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनहेरिटेंस क्या है? phenomenon of passing characters from parent to progeny, we all know. Variation, उसी passing of character में degree by which progeny different from parent. ये inheritance और variation का जो हम the terminologies that we are using or discussing these now, वो क्या, do you think we humankind or mankind knew about them only in recent times? They have started to know it in recent times? No. So let's look at the history that's given in your book. Humankind आज से नहीं, it was as early as 8000 to 1000 BC से उनको वेरिएशन और इनहेरिटेंस के बारे में कुछ अंदाज़ा था. ओके, एंड दे यूज टू डू व्हाट? प्रैक्टिस सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन या सिलेक्टिव क्रॉसिंग एंड डोमेस्टिकेशन. क्यों? क्योंकि नेचर में उनको जो भी क्रॉप या जो भी एनिमल्स अच्छा लगता था, फ्रॉम दैट पॉपुलेशन दे यूज टू सिलेक्ट द बेटर वेराइटीज और फिर उनका सिलेक्टिव क्रॉस कराते थे. दे डिड इट, बट दे डिड नॉट हैव अ साइंटिफिक नॉलेज कि इसका बेसिस क्या है. समटाइम्स इट यूज टू वर्क, समटाइम्स इट डिडंट वर्क. वाइल्ड काउज से थ्रू दिस हाइब्रिडाइजेशन एंड या थ्रू क्रॉसिंग एंड डोमेस्टिकेशन, साहिवाल काउ ऑफ जो पंजाब रीजन में पाया जाता है, that is how this cow was bred, and that's a very important example of humankind या mankind's knowledge from ancient times. Now ancient times से सीधा हम 1900 में आते हैं to the works of Mendel. Mendel had done his work in the later part of 18th century, but it was discovered in the 1900s. Okay, this is where we get the first scientific study and some kind of a scientific proof, scientific basis to study inheritance and variation. So let's study Mendel first. Okay, so let's begin Mendel's experiment. Mendel had done his experiment with the plant Pisum sativum या the garden pea, मटर, वही common मटर जो हम खाते हैं. His experiment continued for 7 years from 1856 to 1863. और मज़े की बात ये है कि when his experiment was done, he had written his conclusions and everything in his own language, जैसे भी था his observations. Till 1900 किसी को मालूम नहीं था about his work. Okay, his research, such an important research work. In 1901, Correns rediscovered work of Mendel. He went through all his conclusions, everything that he wrote, and then he formulated it. Yeah, you can say he articulated it, he wrote it, and he brought it in front of the world. और तब से हम Mendel's law को we know the way we know it today. Okay, so coming back to this experiment, let's look at the characters and their contrasting trait. स्टेम हाइट में डोमिनेंट ट्रेट इज टॉल, रेसेसिव इज ड्वार्फ. फ्लावर कलर में द डोमिनेंट ट्रेट इज वायलेट, रेसेसिव वाइट. फ्लावर पोजीशन,
Axial is the dominant trait or terminal recessive trait. Pod shape, inflated, ये dominant है मतलब फुला हुआ. Constricted is the recessive one. Pod color, green is the pod मतलब जो मटर का ऊपर का, okay, that is green in color, वो dominant है. Yellow वाला recessive है. Seed shape, round is dominant, wrinkled is recessive. Seed color, yellow is dominant, green is recessive. Of all this, ये height, seed shape और seed color वाला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो हम इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे वो ये 3 ट्रेट्स के बीच ही रहेगा. ओके, बट देन व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पी प्लांट? सो दीज आर द रीजंस. ईजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जैसे हमने उस टेबल में ही देखा, टॉल है तो टॉल के अपोजिट में बिल्कुल ड्वार्फ, वायलेट है तो उसके अपोजिट में बिल्कुल वाइट, एंड नॉट लाइक वायलेट एंड पिंक या डार्क वायलेट एंड लाइट वायलेट, राइट. शॉर्ट लाइफ स्पैन, एक ही सीजन में ये ग्रो हो जाता है. इजीली मेड प्योर लाइन्स, प्योर लाइन्स इनमें बनाना इजी था. इजी टू हाइब्रिडाइज, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लावर. तो उनमें इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग एंड ऑल दिस टेक्निक्स वेर इजीली एप्लीकेबल, डूएबल, और वो इजीली डूएबल था. इसीलिए एक्चुअली दिस पॉइंट शुड कम फर्स्ट देन दिस. दैट इज वाई ही वॉज एबल टू मेक प्योर लाइन्स इजीली. लार्ज प्रोजेनी. Now, why was Mendel successful? Large sample, जितना ज़्यादा डेटा होगा किसी भी एक्सपेरिमेंट में, it will always be easier for you to convince others. Sample size जितना बड़ा होगा, डेटा उतना ज़्यादा credible होगा. He used, this is very important, statistical methods and mathematical logic in explaining his result. तब के ज़माने में ये वाला अप्रोच टुवर्ड्स बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स इतना कॉमन नहीं था. दिस अप्रोच वॉज वेरी यूनिक फॉर हिज टाइम. एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, इट वॉज वेरी डिटेल एंड वेल केप्ट. ईजिली एक्सप्लेनेबल फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, राइट. नाउ हाउ डिड ही परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट्स? व्हाट आर द स्टेप्स ही फॉलोड? एक्सपेरिमेंट टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स. तो जो भी कैरेक्टर ही हैड कंसिडर्ड, एक्चुअली डू यू नो मेंडल हैड स्टार्टेड विथ 34 कैरेक्टर्स. 34 से ही नैरोड इट डाउन टू 22 एंड 22 से 7 कैरेक्टर्स. और 7 कैरेक्टर्स अगर हो गए तो कितने प्योर लाइन्स, कितने ट्रेट्स वाले? 14 प्योर लाइन्स ही हैड डेवलप्ड. तो हाउ डिड ही डेवलप द प्योर लाइन्स? फॉर वन कैरेक्टर ही कंटिन्यू टू सेल्फ इट, राइट. जैसे टॉल का टॉल के साथ ही क्रॉस, ड्वार्फ का ड्वार्फ के साथ ही क्रॉस, यूँ क्रॉस करते करते आफ्टर फ्यू जनरेशन्स व्हेन ही सॉ कि खाली टॉल ही आ रहे हैं या खाली ड्वार्फ ही आ रहे हैं, दे बिकेम द प्योर लाइन्स. सो दैट इज हाउ ही मेड 14 प्योर लाइन्स. ओके, बाय सेल्फिंग. फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स या पेरेंट्स फॉर F1. यहाँ से उनको पेरेंट मिल गया एंड देन ही डिड द क्रॉस, हाइब्रिडाइज्ड. टॉल का ड्वार्फ के साथ, राउंड का रिंकल्ड के साथ, ऐसे, राइट. बिल्कुल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्रॉस किया. सो दिस वाज क्रॉस. देन F1 वाज अचीव्ड, F1 जनरेशन. F1 जनरेशन के प्लांट्स में अगेन ही डिड सेल्फिंग. ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए व्हाट आर द मेथड्स ही हैड यूज्ड? द मेथड्स लाइक बैगिंग, emasculation, bagging, methods like emasculation and bagging. These are the standard methods you use whenever you are doing hybridization of a flower. Emasculation मतलब क्या? anthers को काट देना, so that, and that too before it attains the maturity, ताकि उसी का एंथर उस स्टिग्मा में जाके ना गिरे. And then you bag it, right? You dust the stigma with the pollens of your desired, from the desired plant. फिर से बैग करके रख दीजिए so that it does not get any further contaminated. These are the 3 steps. These were followed and hybridized F1 generation was seen. F1 generation में he had done selfing. फिर उससे F2 आया. Now F2 में 2 path things were done.
F2 में जो recessive plants थे, the plants which showed recessive traits, they were self-pollinated, recessive self-pollinated. लेकिन जो phenotype dominant दिखा रहे थे, the dominant plants, they were test crossed. Test cross, you can go and see my video for a detailed explanation, but test cross में होता क्या है, हमेशा एक dominant phenotype वाले इंडिविजुअल को लिया जाता है जिसका जीनोटाइप मालूम नहीं है, एंड इट इज ऑलवेज क्रॉस्ड विद अ रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट, सो दैट उसके प्रोजेनीज को स्टडी किया जा सके टू डिटरमाइन द जीनोटाइप कि ये डोमिनेंट टाइप हेटेरोजाइगस था या होमोजाइगस. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स ही फॉलोड. नाउ लेट अस बिगिन टू लुक इनटू हिज क्रॉसेस. पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, फिर हम डाइहाइब्रिड देखेंगे. मोनोहाइब्रिड से 2 लॉज बनाए गए थे. सो फर्स्ट नाउ वी विल सी द मोनोहाइब्रिड टेस्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सॉरी, the 2 laws, and then we will move on to the dihybrid cross and the law that is based on dihybrid cross. So let us see the first experiment, the monohybrid cross that he had done. और कौन से 2 characters, कौन से character को लिया था? The height character. And what were the opposite traits? Dwarf and tall, या tall and dwarf. तो यहाँ पे देखते हैं पेरेंट, they were pure lines TT and TT, बिल्कुल होमोजाइगस tall and होमोजाइगस dwarf. F1 को हम क्या देखते हैं? It is TT TT. फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप इज टॉल. ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ P इज टॉल. P मतलब फिनोटाइप. ओके, फिर इनके गैमेट्स और F2 क्रॉस करके हम क्या देखते हैं? 1 टॉल है, 2 टॉल है, 3 टॉल है. सो फिनोटाइप में 3 आर टॉल, 1 इज ड्वार्फ. एंड इन जीनोटाइप 1 इज टॉल, 2 आर मिक्स्ड एंड 1 इज ड्वार्फ. राइट, उसी का ही इधर पुनेट स्क्वायर में देख लेते हैं. द पेरेंट आर टॉल एंड ड्वार्फ. प्योर लाइन फर्स्ट जनरेशन हमें मिल रहा है कैसा? TT 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 TT, टॉल 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 टॉल, सारे के सारे टॉल. अब सारे के सारे टॉल को सेल्फिंग कराते हैं. F1 ही हैड सेल्फ्ड, राइट. TT और TT, यहाँ पे तीनों टॉल है. दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ड्वार्फ. तो यहाँ पे भी 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो. जीनोटाइपिक रेशियो ये है 1:2:1. अब ये जो जीनोटाइपिक रेशियो है, दिस कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन के तहत हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्या, व्हाट इज दैट? ax + by होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? दीज आर TT. इसको थोड़ा पोंछ दूँ. लेट मी हैव सम स्पेस सो दैट आई कैन डू इट. 1:2:1. इसको इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्मूला. इसको इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डालने के लिए क्या, वी एज्यूम कि 50% ऑफ द गैमेट्स हैड द T वाला एलील एंड 50% हैड T, राइट. तो हाफ T प्लस हाफ T. So we have 1/4 of T square, 1/4 of T, 1/4 of TT प्लस 1/4 of TT, और इसका भी प्लस 1/4 of TT प्लस 1/4 of TT. So we need to add this two. Sorry. ये आता है. अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं. वेरी बेसिक मैथ.
तो 1:2:1 ये रेशियो आ रहा है. Okay, now based on this cross, what were his exact words? He had told कि his exact words were something was being passed down from parent to progeny in successive generations, and these are through gametes, and these something are very stable. So he had called this something as factor. इसी फैक्टर को हम बाद में जीन्स के नाम से जानते हैं, but at that time gene was not known. And then his words were कि these factors are available in alternating character traits या different forms, जिसे हम अब alleles बोलते हैं. तो how he had actually expressed the F1 का result he had told कि when a pair of contrasting factors are present, only one factor expresses itself, the other does not. ये जो one factor that expresses itself is the dominant one and the other is recessive one. तो वो हो गया the first law, which is the law of dominance. Then what his observation was, how he had seen कि पहला वाला phenotypically is a tall. He did not know the genotype. F2 में he sees a pure dwarf. Now he thought कि ये जो gametes produce कर रहे हैं, something is very stably being passed down, और ये यहाँ पे they are segregating, ये अलग हो जा रहे हैं, कुछ तो वो factor है. That led to the law of segregation. वो भी हम देख लेते हैं. So what is the first law? Law of dominance. Characters are controlled by discrete unit called factors. We know them today as genes. Factors occur in pairs, alleles. मैं यहाँ side लिख देती हूँ. The ones that are in red means कि हम इन्हें बाद में जाने. These were not original words of Mendel. Okay. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. जो dominate करता है that is the dominant allele, और जो dominate नहीं कर पाता that is the recessive allele. Now the second law, law of segregation. Factors या two alleles controlling a character stay together in an individual. Individual diploid है तो एक क्रोमोसोम मम्मा से एक पापा से, तो वो होमोलोगस हो गए. अब हाइट के लिए टी भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी एक इंडिविजुअल में है. फिनोटाइप डोमिनेंट वाला दिखा रहा है, बट सो दे आर टुगेदर इन द इंडिविजुअल, बट सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. मियोसिस होता है तो ये क्रोमैटिड अलग, ये क्रोमैटिड अलग, क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं. मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम्स सारे के सारे अलग हो जाते हैं. सो जो उनमें फैक्टर्स है दे ऑल्सो सेग्रीगेट. यही बात यहीं पे है. फैक्टर्स टू एलील्स कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर स्टे टुगेदर इन एन इंडिविजुअल बट सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. इस लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है, बिकॉज गैमेट्स ऑलवेज कंटेन ओनली वन एलील, और वन एलील है तो वो हमेशा प्योर ही होगा, राइट. Now this law of segregation almost universally applicable, exception खाली chromatids when they fail to separate. Aneuploidy में ये वाला law apply नहीं होता. Law of dominance is not universal. There are many phenomena which are opposite or which challenge law of dominance. Dihybrid cross देख लेते हैं, उसके बाद exceptions to dominance देखेंगे. Okay? So tell me students, is everything clear so far? Is everything so far so good? एक लाइक तो बनता है इसी बात पे, right? So now let's look at the dihybrid cross. So now let us look into the dihybrid cross of or dihybrid experiment of Mendel. तो dihybrid मतलब क्या? दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर किया गया था. So what was the first in the parent generation? Round and yellow, मतलब round seed and yellow in color, और उसका recessive था wrinkled seed and green in color. Okay? तो ये रहे इनके gametes. Of course, the first generation is going to be round and yellow, and it is we all know heterozygous होने वाला है. अब F2 का हम पुनेट स्क्वायर पे देखते हैं.
सो दीज आर द गैमेट्स ऑन बोथ द साइड्स। तो पहला वाला क्या, यहाँ पे जितने भी ब्लू सर्कल्स हैं दे आर ऑल राउंड एंड येलो। जितने ग्रीन सर्कल्स हैं दे आर राउंड एंड ग्रीन, और जितने ब्लू रिंकल्ड हैं दे आर रिंकल्ड एंड येलो, और एक ही खाली रिंकल्ड ग्रीन है विच इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। ओके, तो अगर हम सिर्फ एक एक कैरेक्टर को लेके देखते हैं, कंसिडर करें, से फॉर एग्जाम्पल इफ यू ओनली कंसिडर द शेप ऑफ द सीड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आर कमिंग टू बी राउंड, और रिसेसिव वाला राउंड 1 2 3 4। सो 12 is to 4 डिवाइड करें तो कितना, 3 is to 1, राइट। तो अगर हम एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो रेशियो अभी भी 3 is to 1 है। और कंफर्मेशन के लिए अब हम सीड कलर को सीड कलर को ले लेते हैं, येलो का देखते हैं। येलो इज द डोमिनेटिंग वन, तो एक जगह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जगहों पे येलो कलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो देयर आर 12 वाई। ग्रीन हमें कितने जगह देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 इस टू 4 ग्रीन, फिर से 3 is to 1। तो मोनोहाइब्रिड को अगर हम सिर्फ कंसिडर करें तो रेशियो वही रहता है, बट जैसे ही हम दोनों को साथ मिला के देखें द कम्बिनेशन, द रेशियो चेंजेस। क्या क्या फिनोटाइप और क्या क्या रेशियो हमें देखने को मिलता है, हमें राउंड एंड येलो देखने को मिल रहा है। राउंड एंड येलो पेरेंट पे था, यस था। राउंड एंड ग्रीन पेरेंट पे था, नहीं था। सो दिस इज समथिंग दैट वी गेट अ न्यू वन। रिंकल्ड येलो पेरेंट पर था, नहीं था। रिंकल्ड ग्रीन मिल रहा है। रिंकल्ड एंड ग्रीन पेरेंट पे था, हाँ था। सो व्हाट इज द रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो इज 9 is to 3 is to 3 is to 1. Okay, so based on these, what Mendel had told, he had proposed the law of independent assortment. Assortment मतलब क्या, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना, राइट। अब होता क्या है कि लाइक दिस इज अ क्रोमोसोम, लेट मी टेक 2 मार्कर्स। ये क्रोमोसोम है, तो ही कॉल देम द फैक्टर्स, और फैक्टर्स के अलग अलग पेयर्स हैं। तो व्हाट ही हैड टोल्ड कि इस वाले फैक्टर में जो, इस वाले क्रोमोसोम में जो भी फैक्टर्स हैं और इस वाले में जो भी फैक्टर्स हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, पेरेंट पे तो ये साथ साथ थे, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये इस वाले गैमेट में जाएगा, ये इस वाले गैमेट में। अब इनमें जो भी जीन्स हैं वो भी वैसे ही मूव करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ इसको हमेशा जाना है, इसके साथ इसको हमेशा जाना है। ऑल दिस क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है? दैट इज व्हाट इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द एलील्स ऑफ 2 pairs ऑफ ट्रेट्स, डाइहाइब्रिड, 2 कैरेक्टर लिए गए थे, shape and color, right, separate independently of each other during gamete formation and get randomly rearranged in the offspring at the time of fertilization, thus producing both parental and non-parental combination. तो say for example एक क्रोमोसोम में it had the allele for shape, round, और दूसरे वाले क्रोमोसोम इसका शेप कैसा कर दूं, इट हैड द एलील फॉर कलर। ओके, तो इसके होमोल ये R हो गया, ये छोटा सा y हो गया।
तो ड्यूरिंग गैमेट, और ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे, दीज जीन्स वेर इन सेपरेट क्रोमोसोम्स, सेपरेट क्रोमोसोम में था तभी तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एक गैमेट में ये गया, उसके साथ शायद ये गया, तो वी हैव हैड अ गैमेट आर विथ स्मॉल वाई, और एक वाले में शायद ये दो गया, सो वी हैव हैड अ गैमेट आर विथ स्मॉल वाई। क्लियर है? अब डिपेंड किया कि किसने किसके साथ फ्यूज किया, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव हैड पेरेंटल एज वेल एज नॉन पेरेंटल combination. Is that clear? So I hope I have been able to explain the 3 laws of Mendel to you. इसके बाद exception to laws of Mendel देखते हैं। उसमें क्या dominance जो law of dominance है, there are exceptions to it and let's look at them. तो deviation from Mendelism में first हम क्या देखेंगे? law of incomplete dominance. The law of incomplete dominance. Before we go into this experiment, let me give you an example. एक गली में 2 गुंडे हैं और दोनों ही बिल्कुल टक्कर के गुंडे हैं। अब किसकी दादागिरी चलेगी? ओके, न तेरी चलेगी न मेरी चलेगी, हम दोनों 50-50 का मिला के बीच का कुछ रास्ता निकालते हैं। ओके, सो क्या होता है इस 50-50 के चक्कर में? दोनों कुछ कैरेक्टर्स यहाँ से कुछ कैरेक्टर्स यहाँ से मिला के ब्लेंड होके कुछ बीच का रास्ता निकाल लेते हैं वो लोग, राइट? हियर वी गेट टू सी द सिमिलर थिंग। सो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? इन एंटीराइनम मैजेस, दैट इज कॉमनली नोन एज द स्नैपड्रैगन। इसके फ्लावर्स 2 कलर्स के होते हैं, वन इज रेड, अनदर इज वाइट। सो लेट्स बिगिन विद द क्रॉस। When we make a cross between red and white flowers, expectation क्या है कि F1 generation red होने वाला है as per the law of dominance of Mendel. But here F1 is pink and that surprises us कि ये pink कैसे हो गया? तो what happens in this heterozygous blending हो जा रहा है दोनों का, एंड बीच का एक कलर पिंक इज द फिनोटाइप। तो यहाँ तक क्या कंक्लूड हम कर सकते हैं? वन एक्स्ट्रा कंक्लूजन कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इन पी प्लांट्स, द ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दे वर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, लेकिन उनमें कोई ब्लेंडिंग भी नहीं था इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। हियर इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन वी गेट टू सी सम ब्लेंडिंग, इसीलिए फिनोटाइप इज समवेयर इन बिटवीन द 2 एक्सट्रीम्स। रेड एक एक्सट्रीम हो गया, व्हाइट एक एक्सट्रीम हो गया, पिंक बीच का, राइट? अब F1 को सेल्फिंग करने की बारी। सो दीज आर द गैमेट्स, लेट्स लुक एट द पुनेट स्क्वायर। एक कंप्लीट रेड, एक पिंक, दूसरा पिंक, एक व्हाइट। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 1:2, 2 पिंक इज टू 1 व्हाइट। जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या? 1:2:1। तो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हियर इन एंटीराइनम मैजेस, व्हाट वी सी कि फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम, राइट? इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक एग्जाम्पल है विच इज द स्टार्च ग्रेन्स। I mean not starch grains, the size of starch grains in pea seeds. Okay. दूसरा हमें देखने को मिलता है if we consider the gene that is responsible for the size of starch grains within a pea seed. Okay. तो अगर BB प्योर फॉर्म में है तो इस वाले सीड में the starch grains are going to be of larger size. अगर BB recessive वाला होमोजाइगस कंडीशन में है तो स्टार्च ग्रेन्स आर गोइंग टू बी ऑफ स्मॉलर साइज। पर उनका जब क्रॉस हो जा रहा है, जो सीड का जीनोटाइप ये होता है BB, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, मीन्स दिस हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखा जाता है स्टार्च ग्रेन्स आर ऑफ मीडियम साइज। तो तब ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है कि ये जो जीन है ये अकेले में बादशाह है, इस छुटकू के सामने इसकी उतनी नहीं चलती। ओके तब ये भी कुछ बीच का ही इंटरमीडिएट साइज ऑफ, ये दोनों मिला के इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स बनाते हैं इन द पी सीड। क्लियर है?
Now let us look into the example of codominance. तो now let us look into codominance, और ये हम समझने के लिए कौन सा वाला एग्जाम्पल लेंगे? The ABO blood grouping in humans. Now what is ABO blood grouping? You all know कि human blood groups A group, B group, O group होता है, but then what are they? So what happens is that ये हमारा let me come this way. ये RBC है, RBC का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. यहाँ पे देयर आर दिस शुगर मॉलिक्यूल्स या शुगर पॉलीमर्स विच गिव आउट एंटीबॉडीज. ओके, ये जो शुगर टाइप है ये ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, या ओ, मतलब जीरो कुछ नहीं. एंड डिपेंडिंग ऑन कि कौन क्या आ रहा है बॉडी में, कौन सा वाला एंटीजन, बी एंटीजन आ रहा है या ए एंटीजन आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट दे रिलीज द antibodies. And these sugars, based on the presence of these sugar on the plasma membrane, blood group is divided into A, B and O blood group. तो उस ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कंट्रोल कौन करता है? द जीन I. This gene has 3 alleles, A, B and I. 3 alleles है. Now one thing, we are a diploid organism, तो हमारे में at any moment there is going to be only 2 alleles. तो 3 alleles को स्टडी करने के लिए one individual is not sufficient, उसमें से तो खाली 2 ही alleles मिलेंगे. So to study multiple alleles you need to make a study on the population and not at individual level. और बिकॉज दिस हैज़ 3 एलील, ये खाली कोडोमिनेंस ही नहीं, दिस कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. मोर देन 2 एलील्स कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर. ठीक है, तो क्या क्या एलील्स बनेंगे? IA, IB एंड I. नाउ दिस लेट अस लुक एट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंट. इस टेबल पे हम देख लेते हैं क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, क्या जीनोटाइप और क्या फिनोटाइप हो सकता है. नाउ कोडोमिनेंस मतलब क्या? पहला वाला एग्जांपल इस वाले को लेते हैं, जैसे IA, IB. जीनोटाइप इज IA, IB. यहाँ के ब्लड RBC सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गोइंग टू हैव बोथ द टाइप ऑफ शुगर्स, A ऑल्सो एज B ऑल्सो. तो यहाँ पे दे डोंट ब्लेंड. ए बी का मिला के बीच का कुछ रास्ता नहीं निकालते. तू भी रहेगा, मैं भी रहूँगा, हम दोनों अपना झंडा गाड़ के रखेंगे. कोडोमिनेंस. ओके, सो लेट अस लुक इनटू दिस टेबल एंड क्रॉस. P1 इज पेरेंट 1, P2 इज पेरेंट 2. अगर IA है तो होमोजाइगस ब्लड ग्रुप टाइप A ही होना है. IA, IB, the blood group is going to be AB type. IAI, फिर इसमें भी blood group A होना है because this allele it does not code for any type of the sugar, A, B या कुछ नहीं. इसीलिए इस वाले को O कहा जाता है. O blood group में ये वाला allele in homozygous state रहता है. ओके, IB, IBA, फिर से AB blood group मिल गया. IB, IB, B ब्लड ग्रुप. IB एंड I ये भी डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, तो इसमें ब्लड ग्रुप B होना है. I ये बेचारा अब जाके ब्लड ग्रुप O बना पाएगा. ओके, तो व्हाट डू वी सी? A एंड B जहां भी है in combination in heterozygous condition they are going to co-dominate and they both are going to express equally. So what is codominance? Codominance is the phenomenon where when 2 alleles present in a heterozygous condition expresses itself equally. Clear है? In the phenotype. अगर BB है, AA है तो सवाल ही पैदा नहीं होता. Since I is the recessive, तो ये किसी के भी साथ हो, इस वाले के साथ हो या इस वाले के साथ, the dominant one is going to be the phenotype. Sorry. Now ये जो ब्लड ग्रुप है ये कोई भी तरह का एंटीजन नहीं बनाता.
सॉरी, ये जो ब्लड ग्रुप है कोई भी तरह का एंटीबॉडीज नहीं बनाता, बिकॉज इसके आरबीसी में वो शुगर्स हैं ही नहीं, और बिकॉज इसके ब्लड प्लाज्मा आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई सा भी टाइप ऑफ शुगर नहीं है, दिस ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू अदर्स, क्योंकि वो कोई रिएक्शन ट्रिगर नहीं करेगा। अगर हम ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप वाले को दे देते हैं तो क्या होगा, जो शुगर बैठा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट विल सी दैट ए एंटीजन इज कमिंग, वी आर नॉट A antigen, so it will start producing antibodies against that blood. Clear है? Because it does not have any of those sugars, so this is said to be the universal donor. और A and B इसमें दोनों के दोनों ही antibodies होंगे. It will have the capability to produce both the antibodies, right? So it can accept both. Yeah, so is this clear? नाउ अब तक हम डोमिनेंस पढ़ रहे हैं, एंड बाय नाउ वी ऑल हैव एन आइडिया कि वन ऑफ द एलील इज गोइंग टू बी डोमिनेंट, द अदर नॉट। बट देन व्हाट क्रिएट्स दिस डोमिनेंस? एक को डोमिनेंट होने के लिए दूसरे को तो रेसेसिव होना पड़ेगा, बट देन हाउ डिड दिस डोमिनेंट एंड रेसेसिव थिंग इवॉल्व्ड? सो लेट्स लुक एट दैट इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को हम समझते हैं। नाउ वी आर डिप्लॉयड, तो हमारे क्रोमोसोम्स में 2 कॉपीज ऑफ एलिल्स हमेशा रहने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स टेक एन इंडिविजुअल एंड लेट्स टेक उसके क्रोमोसोम्स। ओके, ये एक क्रोमोसोम है, लेट्स से इसमें ये एलील है ए। Okay, so this is a chromosome with the allele A. A capital letter है, so let's assume this is the dominant one. ये दूसरे वाले क्रोमोसोम में भी डोमिनेंट, दूसरे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम में भी ये डोमिनेंट वाला है। ओके, नाउ हाउ डज अ जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ? वो अपने आप को एक्सप्रेशन, वो फिनोटाइप डिसाइड कैसे करता है? ये जो जीन है वो उस एंजाइम के लिए कोड करता है जिससे कि वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, सो दैट product can be made. Say for example, if I have a gene for my body color, तो वो gene, how will it express? It will come and it will make the enzymes, it will direct the hormones, it will make the enzymes उतना ही जितना से वो उतना that much quantity of melanin बना सके। Clear है? तो normal condition में let's assume these are the 2 alleles, दोनों ही dominant है, both are functioning normally and both are producing a normal enzyme. So scenario number 1, so normal condition, it is coding for the normal enzyme. Now let's assume इस वाले में we get to see some changes, so that change can be of 3 different categories. So क्या होगा? Let's assume now these 3 changes. First change क्या? हल्का फुल्का सा कुछ change हुआ, so that change is not big enough, so it is producing normal या slightly less efficient gene. दूसरा category of या दूसरा degree of change हो सकता है कि it is producing an enzyme या it is coding for an enzyme, but that enzyme is non-functional. उस enzyme के structure में कुछ गड़बड़ है, तो वो भी किसी काम का नहीं। और तीसरा, बहुत ज़्यादा चेंजेस होके इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम या इट डज नॉट कोड फॉर एनी एंजाइम। कोड फॉर इज अ बेटर वर्ड, राइट? तो ये अब ए से क्या हो गया है? ए हो गया है बिकॉज ऑफ द चेंजेस। नाउ लेट अस सी, ये वाला अगर फिर से लेट्स सी, अब ये एक इंडिविजुअल में ये है और दूसरे वाले में, नाउ अगर देख ले कि ये वाला एक इंडिविजुअल है विथ ए नॉर्मल जीन, नॉर्मल एलील, दूसरे वाले में द एलील हैज अंडरगॉन सम मॉडिफिकेशन। नाउ अगर ये ओरिजिनल है, अगर ये मॉडिफिकेशन इज ऑफ द लेवल ऑफ 1, मतलब ये वाला, तो द रिजल्टिंग इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी नॉर्मल।
ओके अगर इसमें जो चेंजेस हो गए हैं इफ इट इज़ ऑफ सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी और इन दोनों में क्रॉस हो जाए तब क्या होगा, खाली यही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, ये दोनों एक्सप्रेस नहीं करेंगे. इन दैट केस दिस विल बी रिसेसिव एंड दिस विल बी बिकम द डोमिनेंट वन. तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या है, एक एलील डोमिनेंट तब रहता है जब वो जैसा था वैसा ही है एंड इट इज कोडिंग फॉर द नॉर्मल एंजाइम्स. बट उसी वाले जीन में ड्यू टू म्यूटेशन या कुछ और जैसे ही चेंजेस आते हैं एंड इट कोड्स फॉर अ लेसर एफिशिएंट एंजाइम या नो एंजाइम एट ऑल, वो तब जाके रिसेसिव बन जाता है. सो एक को डोमिनेंट रखने के लिए दूसरा रिसेसिव, या जैसे ही एक रिसेसिव हो गया दिस बिकम्स डोमिनेंट. इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्लियर? Okay, so with this we are done with the first part of the video. I hope you have liked it, and please don't forget to share, subscribe to my channel, and I'm going to see you in the next video with other topics of this chapter. So please take care of yourself, study well, study hard, and I'm going to see you soon. Bye.